आपने प्रवेश। Hello friends, a warm welcome to another series of writing, understanding and evaluating answers. Hope this consistent and sincere hard work pays in the longer run, which depends on the clarity and also sincerity, but most importantly the self-belief. So that is why before getting into questions, I'm asking Pravesh. So how you are going to rate today's answers, Pravesh? You're going to see yourself. Well, I'll rate my answers good enough, Good and I've enough. tried. Yes, Thank you. I've And what tried. about you, हाँ जी सर. how you will rate So, yourself? so it would be above average. Above average. Okay. Divya, 50 या 60% of your potential. ट्राई किया है जो. तो जी 100% सर. क्यों 100% क्यों नहीं ट्राई किया? सर ट्राई तो 100% ही किया था, पर जो नॉलेज थी, जिस तरह से चीजें सीखते हैं उसके अकॉर्डिंग लिखने की कोशिश की. ओके, लेट्स सी। औशिक का भी देखते हैं, पूछ लेंगे. So cryosphere changes have tendency to bring about a devastating impact on the ecosystem and its people. कितना broad है. Devastating impact on ecosystem and its people. Discuss and also enlist measures to tackle this threat. Cryosphere changes. Cryosphere नहीं बोल रहा हूँ, cryosphere changes बोल रहा हूँ. तो आपने बता दिया cryosphere is permanently frozen layer on earth made of ice, snow and glaciers. क्वेश्चन तो लेकिन cryosphere changes के ऊपर. अब आपने बताया सिग्निफिकेंस अच्छा बनाया आपने, बहुत अच्छा डायग्राम बनाया. फिगर आई थिंक इज अमेजिंग. कार्बन सिंक, permafrost layers, third pole on earth, Hindu Kush mountains, temperature regulation of surrounding areas, hilly states, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, national security due to harsh terrain. Wetness during winters, regions become inaccessible, for example, eastern Ladakh region. Stored harmful inactive pathogens like bacteria and virus, I agree. Perennial source of water, North Indian rivers, Ganges, Satluj. तो आप बात तो शुरू में आप क्रायोस्फीयर की कर रही हो, क्रायोस्फीयर चेंजेस की बात नहीं कर रही हो. तो जब आपने क्रायोस्फीयर बताया तो आपको क्रायोस्फीयर चेंजेस बताना चाहिए था. दैट लिंक इज मिसिंग. Biodiversity and seed banks in Antarctica to preserve threatened and indigenous seed varieties. I think flow is good. Points are very good. Simple general studies approach is there. Retreating glaciers and devastating impact disasters and their management more riskier due to phenomena of glacial lake outbursts as seen in Sikkim. Amplified climate change with rise in sea water levels, reduced albedo effect, release of carbon and methane, opening up more waterfronts in global commons. I like the keywords. Availability of minerals and natural resources like crude oil, polymetallic nodules, availability of small sea lanes of communication for trade routes, Arctic region, district. Measures to prevent and mitigate Paris Climate Agreement to reduce temperature, increase 2 degrees centigrade of pre-industrial levels, Montreal Protocol, ozone layer. But due to effectively implement the measures, common but differential responsibility is the way forward. तो क्वेश्चन को आपने टैकल किया, बहुत सारे एलिमेंट्स आपके आए, रिपीटेटिव भी नहीं है, पैलेस स्ट्रक्चर भी बहुत रिफ्लेक्टेड है, लेकिन वो ग्लेशियर, वो परमाफ्रोस्ट चेंजेस जो वर्ड था शुरू में, जो आपको क्वेश्चन ने डिमांड किया कि cryosphere changes have tendency to bring about a devastating impact on the ecosystem and its people. तो चाहे फिर वो लोकल पीपल हो, लोकल का मेरा मतलब है जो नेचुरल, जो वहाँ के इनहेबिटेंट्स हैं, सिर्फ मैं उस रीजन की बात कर रहा हूँ, और उसके अलावा जो बाकी इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, जैसे आपने गैंजीज और ये सारा बोला, तो इसके अंदर एक लाइन या एक अप्रोच आ सकती थी कि इसके होने से होगा क्या. तो आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को लेके आ सकते हैं आप. उसके बाद कोस्टल एरियाज में सिटीज हैं वो भी डूबेंगी, क्योंकि जब सी वाटर राइज करेगा. और ड्रिंकिंग वाटर वाली बात तो आपने की है. तो कुल मिला के डायरेक्शन पूरा है, लेकिन और प्रिसाइज और थोड़ा सिंपल हो सकता है. तो वन कैन लुक इनटू इट. लेट्स सी विद अदर आंसर्स. यू कैन मेक ए मार्क और नोट जो भी मिसिंग एलिमेंट आपको लगता है. एंड दिस इज फॉर एवरीवन एल्स आल्सो. Frequent instances of urban flooding poses severe risk to the urban ecosystem in India. तो शुरुआत करनी चाहिए कीवर्ड यहाँ पर अर्बन इकोसिस्टम से, कि अर्बन इकोसिस्टम आखिर है क्या. अर्बन इकोसिस्टम के अंदर भी एक है स्टैटिक एलिमेंट, एक है आपका डायनेमिक, और उसके बाद आपको इम्पैक्ट ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर.
तो अर्बन इकोसिस्टम और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को आप लिंक कर दो, तब आपका आंसर हायर लेवल की अप्रोच पे लेके आए। लेकिन आपने फ्रीक्वेंट अर्बन फ्लड्स रिफ्लेक्ट द डिलैपिडेटेड स्टेट ऑफ अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, तो उसमें जो क्वेश्चन में जो एलिमेंट है अर्बन इकोसिस्टम का वो मिस हो गया। अगर अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन ही है तो बात ही खत्म होगी, आंसर फिर अब क्या रह गया आंसर में? चाइनाज मॉडल ऑफ स्पॉन सिटीज कैन एड्रेस दैट चैलेंज, सीधा उठा के आपने चाइना का स्पॉन सिटी का मॉडल रख दिया। तो हमारे स्मार्ट सिटी का, हमारे जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन उससे पहले था, हमारा अमृत है, फिर उसके बाद हमारा वेटलैंड के लिए गाइडलाइंस हैं, फिर उसके बाद हमारा PWD, उसके बाद हमारा जो है बेंगलुरु सिटी के अंदर जब हम फ्लड्स की बात करते हैं रोल होना चाहिए कि आप कंक्रिटाइजेशन को रोकें, फिर हमारा जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं उनको रिटेन कैसे करें, वो सब फेल हो गया वो। तो आपने रीजंस तो बता दिए, ये बिल्कुल सही है, क्लॉग ड्रेन्स एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, प्रेशर ऑन अर्बन होल्डिंग कैपेसिटी, कंक्रीटाइजेशन एंड अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, ये सारा बात ठीक है। लेकिन लैंड शार्क्स को कौन लेके आए? जो नेक्सस है ब्यूरोक्रेसी के कुछ एलिमेंट्स और जो रियल स्टेट सेक्टर का जो नेक्सस है वो कौन लेके आएगा? पॉलिटिसाइजेशन है जो और डेवलपमेंट का, उसको कौन लेके आएगा? मास्टर प्लान जो होता है, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, Tier 2 सिटीज का हो, वो कौन लेके आएगा? तब जाके आप आंसर को एड्रेस कर सकते हो। मुझे याद है कि हम लोगों ने एक बार ईश्वर जज आलूवालिया, उनको हमने अर्बन प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में हमने पढ़ा भी था, और आंचल ने एक आर्टिकल भी दिया था, और एक नहीं कई दिए थे। उसका एक एलिमेंट भी अगर आप लेके आते तो हमें और ज़्यादा, हमें जो है एट द सेम टाइम हमें और ज़्यादा वैल्यू मिलता। पॉइंट सारे अच्छे हैं, लेकिन जब और लोग भी ये पॉइंट लिख देंगे और वो हमसे कम शब्दों में हायर फ्रेज यूज करके लिख देंगे तो हमारा स्कोर कम हो जाएगा। चलिए आगे। अब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एट रिस्क, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, रिड्यूस्ड इनकम एंड राइज इन, बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रिसिटी। तो कैस्केडिंग इफेक्ट भी आपने बता दिए। डिजिटल इकोनॉमी, अब कैस्केडिंग डिजिटल इकोनॉमी जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर से लेना देना है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेना देना है, बाकी उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। पानी नहीं मिलेगा जब घर डूब जाएंगे, लेकिन आप यूपीआई तो कर ही सकते हो। अगर मान लो आपका इंटरनेट चालू है तब सर यूपीआई कर पाओगे। इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है कि पावर कट होने के बाद क्या कैस्केडिंग इफेक्ट्स हैं। आई एग्री, लेकिन फिर अगर हम यहीं अर्जेंटीना या अफ्रीका स्टाइल में हम यही लड़ते रहेंगे कि लाइट भी चली गई, पानी भी चला गया, हम मर गए, तो फिर आप मॉडर्न डीएम कैसे बनोगे? मॉडर्न डीएम क्या करेगा फिर? देयरफॉर मेजर्स आर नीडेड। चलिए बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ये ऊपर वाले को हम ज्यादा पॉजिटिव और ज्यादा क्रिटिकल एलिमेंट, वैसे पहले से तो बहुत ही अच्छा है, पहले से तो मतलब इफ वी कंपेयर देन अ लॉट न्यू लेयर इज कमिंग अप। लेकिन फिर भी थॉटफुल सिटीज, अब थॉटफुल सिटीज हो सकता है आपने वर्ड डाला, इसकी जगह आप डालते हैं यहाँ पर कि जो हमारा ई वेस्ट सेग्रीगेशन रूल है या हमारा मतलब वेस्ट, सॉलिड वेस्ट सेग्रीगेशन रूल है, उसको बस वो आप वो ब्लू ग्रीन वाला बना देते हैं, यहाँ पे काम हो जाता। अब साइंटिफिक एंड प्लान ऑर्गेनाइजेशन कैसे? मैंने जैसा बोला, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुड़गांव, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यू नो दिल्ली है या चेन्नई है, उसका एग्जांपल आप देके लिख दो। जो आप मतलब आपको आंसर में से पॉजिटिविटी निकालनी है। स्पॉन सिटीज आप ऊपर एक बार बोल चुके हो, दोबारा लाने का मतलब नहीं बनता। एक आंसर में जब एक बार हमने शुरू में कहीं, वहां आपने चाइना की बात की थी, शुरू में आपने चाइना डाल दिया, हम चाइनीज मॉडल ले सकते हैं, वहीं गड़बड़ हो गया वो। हमें लेना सब कुछ चाइना का, लेकिन बोलना नहीं, हमें उसको इंडियनाइज करके लिखना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे? अब शुड बी पार्ट ऑफ स्मार्ट सिटीज मिशन, शुड बी, यानी ये भी मतलब जिसे कहते हैं कि हमने बॉल आई और हमने ढंग से नहीं खेला शॉट और हम प्रैक्टिस कैच में आउट हो गए। वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रही है, लेकिन वो पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए तो कंपलसरी है, प्राइवेट के लिए तो कंपलसरी है कि नहीं है, देखना पड़ेगा। चाहे फिर वो बीएमसी है, चाहे फिर वो चेन्नई है, आता है, रेरा आता है, लेकिन उसको भी बाईपास करके, लूप होल्स करके लोग बिल्डिंगें बना देते हैं। था वहां पर क्या जंगल, और वहां पे बन गया, वहां पे बन गई सोसाइटी। तो ये वाला एलिमेंट आपको लेके आना है प्रैक्टिकल, लेकिन आप लेके आए हो, आपने बढ़िया लिखा, लेकिन ये बढ़िया बेस्ट नहीं, मतलब आपका बेस्ट है, आंसर का बेस्ट नहीं। सैंड इज नॉट ओनली क्रिटिकल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट ऑल्सो प्रोवाइड्स क्रूशियल इकोसिस्टम सर्विस।
Elaborate. In this context, discuss the importance of sustainable sand mining in India. आपने बताया बहुत अच्छा, सैंड हिटोजिनस मिक्सचर है, बहुत अच्छा लिखा आपने, मिनरल माइनर मिनरल है, अंडर माइंस एंड मिनरल है, क्रूशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन क्वेश्चन ऊपर क्या था देखो, क्वेश्चन ऊपर कह रहा था इट इज क्रिटिकल, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ क्रिटिकल, वो क्रिटिकल बोल रहे हैं, तो क्रिटिकल आपने बोला, उससे पहले आप एक लाइन और डाल देते, फिर आप क्रिटिकल पे लिखना शुरू करते कि भाई क्रिटिकल ऐसे है। आप पहले एक एक पावर स्टेटमेंट की तरह दे सकते थे, लेकिन ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन सेक्टर टाइमली बेसिस डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ सैंड, सिर्फ अवेलेबिलिटी नहीं, जहां पर जैसा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ज्योग्राफिकल जो हमारा स्पैशियल डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में, उसके हिसाब से आप बोलो कि वहां का जरूरी है लोकल, इसीलिए इलीगल सैंड माइनिंग नुकसान कर देती है। एनर्जी जनरेशन, बिल्कुल सही बात है, चलो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी आप जगह का नाम बताते, कहां पर ऐसा हो रहा है, राजस्थान है कि गुजरात है, क्या है। लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी फॉर माइग्रेंट, व्हाई ओनली फॉर माइग्रेंट, व्हाट अबाउट लोकल पॉपुलेशन। आप क्यों चाहते हैं कि पंजाब की सैंड माइनिंग जो है बिहार से आए हुए लेबर या उड़ीसा वाले लेबर करें? आप वहीं के लोगों को क्यों नहीं देना चाहते, या इसके साथ जो मसल पावर है उसका एलिमेंट ले आओ आप। चलिए आगे, इकोसिस्टम सर्विसेज, इकोलॉजिकल बैलेंस ड्यू टू हैबिटेट फॉर इको एक्वेटिक इकोसिस्टम कैन इम्पैक्ट नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर एंड रिजल्ट्स इन शिफ्टिंग ऑफ रिवर। तो क्या होगा शिफ्टिंग ऑफ रिवर से? धीरे धीरे कंक्रेटाइजेशन, बैरन लैंड, और आपको धीरे धीरे जो स्वैन, क्रेन, वेटलैंड, सब धीरे धीरे आपका खत्म हो जाता है, वो आपको लिखना है ना। सी फूड एंड फूड सिक्योरिटी, ये आपने अच्छा बोला। फिशरी इंडस्ट्री ग्रोथ, कोस्टल जोन में आप ठीक जोड़ा आपने, लेकिन ऊपर वाला और अच्छा जोड़ना चाहिए था। तो मेजर्स क्या बोले आपने, मैन्युफैक्चर्ड सैंड इज सस्टेनेबल अल्टरनेटिव, पर कैसे, कौन करेगा है? हमारे चेन्नई सुपर किंग के जो ओनर है उनको पता है ये एम सैंड, उनको करना चाहिए, अगर आप कोई मतलब उन तक बात पहुंचे तो। अल्टरनेटिव नेचुरल सैंड का, और क्यों जाएं इसमें, जब नेचुरल सैंड रात को ट्रॉली भर के आ जाती है, और एक गोली चलाने से जब मैं 1 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़ कमा सकता हूं, तो मैं क्यों करूंगा ये? इसमें कौन दिमाग खराब है मेरा? ट्रॉलियां चल रही हैं मेरी, चुनाव भी जीत जाऊंगा मैं, और एसएचओ, और आगे मेरे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, न्यूज़पेपर में भी नहीं आएगा, तो फिर मैं क्यों करूंगा ये? CRZ नॉर्म्स, अब नॉर्म्स तो हैं, लेकिन इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोक कौन पाता है? बिहार में तो इलीगल माइनिंग इतनी ज्यादा है, सैंड माइनिंग, कि सब डूब चुका है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। सैंड माफियाज, अब आप लास्ट में सैंड माफिया को लेके, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन यूजिंग ड्रोन्स। अब रात को आप ड्रोन चलाओगे, मान लो नीचे ट्रैक्टर जा रहा है, वो गोली मारेगा, ड्रोन को गिरा देगा। तो प्रैक्टिकल सैंड, वाह ये अच्छा लिखा आपने, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव नेचुरल, लेकिन थोड़ा और नेचुरल आपको लाना पड़ेगा, रियलिस्टिक, तब आपके आंसर में नंबर आएगा। ये हम कोचिंग के लेवल से ऊपर उठ गए, कोचिंग के टीचर से भी ऊपर उठ गए, लेकिन यूपीएससी वाले आंसर में हम नहीं पेनेट्रेट कर पाए। The challenge of unbridled and unbalanced growth of urban spaces in India necessitates the reforms in urban planning and capacity. तो इसका आंसर है, जो मैंने अब तक बोला वो सब उसका आंसर है, जो यहाँ पर लिखना है, जो अभी तक हमने चर्चा की, इस क्वेश्चन का आंसर वही है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। द चैलेंज ऑफ अनब्रिडल्ड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ अर्बन स्पेसेस नेसेसिटेट्स द रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लान एंड कैपेसिटी, डिस्कस। तो पहले एक पावर स्टेटमेंट लाते, हैबिटेट, यूएन हैबिटेट की बात करते, आप बात करते कैसे इकोसॉक या बाकी कोई बॉडी, या फिर इंडिया के अंदर भी जो है इंडिया के अंदर हुडको है या बाकी बॉडीज हैं, उन्होंने रोल प्ले करने की कोशिश की। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, 60% ऑफ पॉपुलेशन विल रिजाइड इन अर्बन एरियाज बाय 2050। आप लिखते इसके आगे, बहुत अच्छा लिखा आपने, आप लिखते ये, क्या ये खुशी की बात है, इज इट अ पॉजिटिव मैसेज और इज इट ए वार्निंग, क्वेश्चन मार्क, एक नंबर आपका बढ़ जाता, लेकिन आपने सिर्फ लिख के छोड़ दिया। अनब्रिडल्ड अर्बन स्पेसेस हैव रिजल्टेड इन ट्रैफिक कंजेशन, इंक्रीज्ड ट्रैवल एंड कॉस्ट टाइम, इम्पैक्ट वर्कर्स प्रोडक्टिविटी। उससे पहले जो अनप्लैंड या अनब्रिडल्ड अर्बनाइजेशन होता है, वो केओस क्रिएट करता है, केओस। ट्रैफिक कंजेशन जब होगा ना, जब सड़क बनेगी, जब सड़क ही नहीं बनेगी, टेढ़ी मेढ़ी है, कहीं से कुछ जा रहा है, ये तो आप गुड़गांव दिल्ली वाली बात कर रहे हो, वो तो है ही, ये भी आएगा, लेकिन उससे पहले होता है क्योस, सोशल क्योस। उसके अलावा इकोनॉमिक स्पेसिस ढंग से ग्रोथ नहीं करते, लॉ एंड ऑर्डर
और जीडीपी जो होती है वो कम हो जाती है, पर कैपिटा इनकम कम हो जाती है, और उसके बाद आप इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा ला सकते हो। डबल व्हीकल डेंसिटी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये बात भी बिल्कुल सही है। कंक्रीटाइजेशन एंड अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, अब इसको थोड़ा सा फील लाइए इसमें, और कि कैसे क्या। अर्बन स्लम्स विद पुअर हाइजीन एंड टेम्पररी हैबिटेशन, अरे भाई अर्बन स्लम तो है ही, लेकिन बाकी लोअर और मिडिल क्लास कौन सा वो चैन से जी रहे हैं, वो भी मर रहे हैं। तो आप अर्बन स्लम लिख के बाकी को कहाँ छोड़ दिया आपने, तो वो ऐसे नहीं चलेगा। मेंटल हेल्थ एंड रिलेटिव पॉवर्टी, तो इसकी जगह एक वर्ड लेके आइए लोनलीनेस, इसकी जगह वर्ड लेके आइए एलियनेशन, इसकी जगह वर्ड लेके आइए कैजुअल इकोनॉमी जो हो गई है, जो गिग इकोनॉमी की हम बात करते हैं। अर्बन फ्लड्स एंड वाटर क्लॉगिंग ड्यू टू पुअर ड्रेनेज, नहीं ड्यू टू पुअर ड्रेनेज नहीं, अर्बन फ्लड्स एंड वाटर क्लॉगिंग हैपेंस बिकॉज ऑफ द ग्रीड ऑफ कंक्रीटाइजेशन। बनाते जा रहे हो किराए पे चढ़ा रहे हो, बनाते जा रहे हो किराए पे चढ़ा रहे हो। Therefore, one size fit all approach will not be sustainable, बिल्कुल सही बात है। हिली टेरेन स्टेट्स, हैबिटेशन कैपेसिटी एंड टूरिस्ट कैपेसिटी, तो आप हिली टेरेन से पहले आप बड़ी जो सिटीज की आपने ऊपर चर्चा की उसको बताना चाहिए था, आप एक लाइन लिखते। नेचुरल सॉयल एंड नॉन कंक्रीटाइज्ड स्ट्रक्चर्स यूजिंग इंडिजिनस मेथड्स लाइक वुडन बीम्स इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक लिखा। तेरे केरला के लिए भी है, ये सबके लिए है। एक्सपर्टीज ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्लान, आई थिंक गुड, ये भी अच्छी कोशिश है। लिवलीहुड अकॉर्डिंग टू नेचुरल एनवायरनमेंट, प्रमोशन ऑफ हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर अंडर मिशन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। व्हाई ओनली जस्ट मिशन, व्हाई नॉट द रोल ऑफ लोकल बॉडीज, आरडब्ल्यूए, सबको लेके आओ। सिर्फ स्कीम को क्यों बोलती हो, स्कीम तो मतलब वही सरकारी वाला बात हो गई कि भाई रिश्वत देने पर हमें बताएं। अरे जिसको देनी है बताएगा थोड़ी ना, बहुत कम बताएंगे ना। बाकी तो रिश्वत देना चाहते हैं, किसको देनी है ये बताओ यार, दे किसको, पैसा है देने के लिए पर दे किसको। डीएम खाता है हमें पता है, लेकिन किसके थ्रू दें। इक्विटेबल रीजनल ग्रोथ एज बीइंग प्रमोटेड बाय अमृत एंड अटल इनोवेशन लैब्स। अब इक्विटेबल अटल इनोवेशन लैब्स और अमृत दे आर, आप इसकी जगह जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको हम कहते हैं कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, लेकिन क्वेश्चन अर्बनाइजेशन के ऊपर, क्वेश्चन है अनब्रिल्ड प्लान अर्बनाइजेशन। तो आप गांव को लेके आओ कि स्मार्ट गांव बनाओ, या गांव को ठीक से आप जब ग्रो करोगे तो शहर में धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शहर क्या है, शहर तो मतलब इसीलिए तो है कि वहाँ कनेक्टिविटी भी है, वहां पर ग्रोथ भी है, वहां पर उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी है, तो वो एंगल ले आते हैं आप। ग्रीन स्पेसिस टू अब्सॉर्ब इन्वायरमेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेस। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, आरआरटीएस इज a very good example. नॉट जस्ट इनहैंस ईज ऑफ कम्यूटेशन, आपको अपनी अर्बन प्लानिंग में इसको ऊपर रखना चाहिए था। ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके बाद आपका जो डिग्रेडेशन होने वाला है मेरठ से लेकर पूरे वेस्टर्न यूपी का और दिल्ली के पार्ट पे जो प्रेशर है वो अपने आप कम हो जाएगा। मुझे मेरठ से दिल्ली आना है, मैं आरआरटीएस में बैठ रहा हूँ और मैं 1 घंटे में पहुंच रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत है दिल्ली में रहने की, वाई आई शुड लिव इन दिल्ली। तो आपको थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से हल्का सा सोचना है। यू आर देयर, you are bringing lot of ideas which are not repeated, but a second layer and second level is needed for a person of caliber like you. Coastal urban areas disaster management उड़ीसा मॉडल टू मिटिगेट, अब क्या है उड़ीसा मॉडल किसी को पता ही नहीं, आपने सिर्फ उड़ीसा मॉडल टू मिटिगेट इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन, तो ये नहीं चलेगा। मैरीटाइम एंड फिशरमैन सेफ्टी, क्रिएशन ऑफ फिश फार्म्स, फॉर एग्जांपल मिष्टी स्कीम वेस्ट बंगाल। थोड़ा सा मतलब एक स्टेप आगे आइए, स्कीम का नाम आप बताते हो लेकिन फील कराइए स्कीम के अंदर, अगर आपको पता है एग्जैक्टली क्या है तो एक वर्ड में आप बता सकते हो, एक लाइन में बता सकते हो। फेमिनिस्ट मूवमेंट्स इन इंडिया हैव हिस्टोरिकली लैक्ड इंक्लूसिविटी, ऑफन ग्रोइंग विद इन ए लिमिटेड वेस्टर्न अपर क्लास साइकी। क्रिटिकली डिस्कस, क्योंकि क्रिटिकली डिस्कस बोल दिया तो तुम्हें मौका दे दिया गया है ऑलरेडी कि आप इसके अगेंस्ट जा सकते हो। फेमिनिस्ट मूवमेंट्स गोल हैज बीन जेंडर इक्विटी इन सोशियो इकोनॉमिक स्फीयर ऑफ लाइफ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक लाइन में आपने ऐसी बस रोक के छोड़ दिया। अरे इंडिया की बात कर रहा था, हिस्टोरिकली बात कर रहा था, तो आप भी बोलते हाँ भाई बात तो सच है, पर ऐसा क्यों है एक लाइन में लिख देते, पर आपने उतना सोचा ही नहीं। इवोल्यूशन ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट नहीं पूछ रहा हूं, वो पूछ रहा है ऊपर कि फेमिनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया हैव हिस्टोरिकली लैक्ड इंक्लूसिविटी, ऑफन ग्रोइंग विद इन ए लिमिटेड वेस्टर्न अपर क्लास साइकी, क्रिटिकली डिस्कस। तो इवोल्यूशन ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट आपने 19th सेंचुरी, कॉल फॉर रिफॉर्म, सोशल एविल, सती अनटचेबिलिटी, रानी झांसी। रानी झांसी कैसे सती और अनटचेबिलिटी में आ जाएंगे, अब ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। डायरेक्टली तो नहीं लगा सकते हम उनको, रानी चेन्नम्मा और रानी झांसी की जगह है
आप सरला देवी चौधरानी या फिर आप बाकी जो बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई, सो और बाकी रीजन मद्रास है जैसे, या बाकी वहाँ की जो अपर क्लास फीमेल्स हैं, बड़े जो फेमस लीडर्स थे उनकी वाइफ हैं जैसे रमाबाई रानाडे, उनकी चर्चा आप एक लाइन में कर सकते थे, पर आपने बहुत अच्छी कोशिश की। गांधीयन फेज इंक्लूडेड राइट टू वोट, प्रॉपर्टी राइट्स, वुमेन पार्टिसिपेशन, की पिलर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, बिल्कुल सही बात है, लेकिन गांधीयन फेज में एक लीडर का नाम तो बताते। यहां पर आपके दिमाग में सरोजिनी नायडू क्यों नहीं आए, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज फोकस्ड ऑन द सेफ्टी एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, लैक्ड इंक्लूसिविटी, फिर आपने एक लाइन लिख दी। अरे आप लिखते, आप जाके टीवी में भी देखेंगे तो पहले ऐड भी ऐसे ही आते थे जो बड़े सेंसिटिव, कंज्यूमर राइट्स की बात है, जेपी मूवमेंट की बात है, और फूड इन्फ्लेशन की बात है, लीकर के अगेंस्ट की बात है, उसमें फीमेल का बहुत रोल रहा है। लैक ऑफ सिंगल लीडरशिप नहीं है, सिंगल लीडरशिप मूवमेंट हुई है, अगेंस्ट डाउरी भी हुआ है, आपको नाम नहीं पता। बुटालिया जी हैं, उर्वशी या उषा बुटालिया उनका नाम है, बहुत फेमस है वो, उनका मैगजीन भी उन्होंने निकाले हैं। जोग्राफिकली आइसोलेटेड, रीजनल लैंग्वेजेस एंड लैक ऑफ, रीजनल लैंग्वेजेस ने तो फीमेल को जगह दी है आगे आने के लिए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई अपर क्लास क्यों, अरे लोअर को तो अवेयरनेस ही नहीं मिली, पढ़ाई नहीं मिली, सोशल है, पेट्रियार्कल है, सब्जी रोटी बच्चे और थप्पड़, और घर में मर्द की जो दादागिरी है उससे ही बेचारी को कभी फुर्सत नहीं मिली। जब उसने आंख उठाने की कोशिश की तो उसको बोला गया कि ये बिगड़ गई है। तो ये वाले एलिमेंट आपको लेके आने पड़ेंगे ना। ट्राइबल वुमेन सेफ्टी एंड नॉन रिकॉग्निशन ऑन वाइडर स्केल, तो ये थोड़ा सा हमारा ऑफ बीट हो गया, लेकिन आपने आई थिंक कोशिश अच्छी की। मी टू मूवमेंट बहुत रीसेंट आप ले आए, इक्वल पे इक्वल वर्क, ठीक बात है। स्ट्राइक्स आंगनवाड़ी आंध्र प्रदेश आशा, बट द मूवमेंट इज नॉट कोऑर्डिनेटेड विद प्राइवेट कोऑपरेटिव सेक्टर। तो आपको लिखना है वुमेन मूवमेंट के लिए क्या प्राइवेट सेक्टर तैयार है, वो खुद तैयार नहीं है। ये कौन देगा औरत को नौकरी, 2 दिन छुट्टी उसको वैसे मांग लेनी पड़ेंगी, ऊपर से जिस तरीके के डिस्कशंस हैं मॉडर्न टाइम्स में कि फीमेल को केयर गिविंग के लिए भी दो, मैटरनिटी लीव भी दो, और उसके बाद जो है उसको मंथली भी लीव चाहिए। अरे भाई, इससे अच्छा है कि वो घर में बैठे, धंधे को मंदा कर देती। दैट इज व्हाट द माइंड सेट, तो उसको तोड़ के आपके आंसर में आना चाहिए वो। पॉश आप ले आए, वुमेन पॉलिसी स्टेशन, वेरी गुड, आई थिंक गुड एफर्ट, आई थिंक यू हैव फॉट रियली वेल, राइट रानी चेन्नम्मा एंड झांसी की रानी। लेकिन वही है कि बिना पता हुए भी कम आपने इतना लिख दिया, इसके लिए मैं आपको वाकई बधाई देना चाहता हूँ। चलिए आगे, और ऐसी कोशिश कीजिए आप। क्रायोस्फीयर जल मंडल का वह हिस्सा है जहाँ कम तापमान के कारण पानी जमता है या बर्फ के रूप में पानी, ठीक है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में आपने बता दिया, चलो चलो आगे चलिए आगे चलिए। आर्कटिक क्षेत्र में जमने वाली बर्फ पिघलने लगी है 1000 साल में पहली बार। अंटार्कटिका भी बता दिया आपने, चलो फिर क्या करें। नेचर विज्ञान पत्रिका, देखो कितना अच्छा लाइन बोला, नेचर विज्ञान पत्रिका द्वारा ये बोला गया है। तो इससे क्या हुआ, सिंपल बात भी बोल दी, और भैया मैंने नहीं बोला, ये नेचर विज्ञान पत्रिका ने बोला। तो इससे नंबर 1 अपने आप आ जाएगा, 1.5 नंबर, कोई ना रोक सकता। समुद्र तल बढ़ रहा है, जैसे मैंने आपसे वहां पे भी कहा था। मौसम पर दुष्प्रभाव पिछले साल, अब पिछले साल को पता नहीं कौन सा साल होता है, पिछला साल, हर साल पिछला साल, तो यहाँ साल लिखना चाहिए, 2022 है, 20 है, 21 है, 50 है, क्या है। पर वही है, जब हम लिखते हैं तो हम इमोशनल हो जाते हैं, हम सोचते हैं हम ही दुनिया में बहुत काम कर रहे हैं, हम ही बड़े मेहनती हैं, और हमने ही सही लिखा है। सर्दियां बिना बर्फ रही, देखो कितनी अच्छी बात बोली। पानी का संकट बोला, पर्यटन पर आधारित अर्थव्यवस्था वाले राज्य। तो यानी सिंप्लिसिटी हम इस आंसर से ले सकते हैं। बहुत सारे एलिमेंट जो हमने पहले वाले आंसर में चेक किए थे वो अच्छे थे, लेकिन कुछ एलिमेंट यहाँ से भी लिए जा सकते हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। चलिए समाधान में देखिए, जीवाश्म ईंधन का कम से कम प्रयोग, तो अब इन्होंने, लेकिन जो है आपने जैसे जो स्टैंडर्ड और इंस्टीट्यूशनल आंसर में जो पॉइंट लेके आए थे वो नहीं लेके आए, इनको वो लेके आने चाहिए। चलिए आगे, शहरी बाढ़ की बारंबार होने वाली घटनाएं भारत में शहरी परितंत्र के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं पर पड़ने वाले इसके प्रभाव पर विशेष बल देते हुए चर्चा कीजिए। विशेष बल देना है। तो भारत में निरंतर ग्रामीण से शहर के चरम बिंदु की ओर बता दिया इन्होंने, अंतर्निहित बता दिया, आर्थिक विकास परियोजना, इन्होंने भी बोला 2030 तक 40% आबादी ये करेगी। शहरों का विकास तंत्र गति, ये हो गया। जो शहरी बाढ़ जल उत्पन्न हो, बहुत सारी आपात। चलिए बेंगलुरु मानसून के समय आई समस्याएं, अरे सोल्यूशन वाली बात, जलमग्न हो गया।
फ्लैश फ्लड जैसी समस्या। चलिए आगे। अनियोजित पर्यटन गतिविधियां हिमाचल और उत्तराखंड में, चलिए मान लिया मैंने। बांधों का उचित रख रखाव, प्रबंधन की कमी। अवैध खनन, बिल्कुल सही बात है, इससे नदी के रेत और जो है क्वार्टजाइट का अवैध खनन, बिल्कुल। निरंतर वृक्षों की कटाई, जीवन और संपत्ति की क्षति, पारिस्थितिक प्रभाव। लेकिन ये भी जो असली, जैसा मैंने पहले आंसर में डिस्कस किया था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जवाब चाहिए वो यहां से भी गायब हैं। नील रहित अवसंरचना एक प्रभावशाली स्मार्ट सिटी के साथ साथ माइंडफुल सिटी। जल प्रभाव, वाटरशेड का निर्माण, पॉइंट अच्छे हैं, लेकिन वो नहीं है जो हमने बात की, जो यहाँ पर चाहिए। ना पॉलिटिशियंस को लेके आते हो, ना नेक्सस लाते हो, ना प्रैक्टिकल बात को लिखते हो, वो सब लाओ। रेत में देखते हैं, जल के पश्चात पृथ्वी का दूसरा सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल रेत ही है। क्या बड़ा अच्छी लाइन लिखी है। और उन्होंने अविवेकपूर्ण खनन की बात की, बुनियादी ढांचे के लिए कंक्रीट की बात की। रेत जैव विविधता का समर्थन करते हुए वनस्पतियों और जीवों का आवास प्रदान करने की बात की। तटों पर रेत एक प्रभावी रणनीति, बहुत अच्छा लिखा। पहले वाले आंसर में भी बहुत अच्छे पॉइंट थे इसी तरह से। लेकिन 50 अरब टन और बजरी का उपयोग तो करते हो, लेकिन चोरी की बात तो करो। वो जो प्रॉब्लम है, इलीगल कहाँ लाए आप अब तक? अब तो आप समझा रहे हो। अवसंरचनात्मक क्षति, स्वास्थ्य समस्याएं, संसाधन, जल पूर्ति, वैद्य। चलिए आगे। सरकार द्वारा उठाए गए कदम में क्या बोला आपने? साधारणीय रेत खनन प्रबंधन, पर्यावरण, खनन प्रणाली, माइनिंग टेनेनमेंट सिस्टम। यह ऑटोमेशन के माध्यम से देश भर में उत्पादित खनिज राष्ट्रीय पैमाने पर लेखांकन की सुविधा प्रदान करता है। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। विकल्पों की खोज की जाए, जैसे ऊपर हमने बात किया। इन्होंने भी ड्रोन और सीसीटीवी लेके आए ये, लेकिन इसमें ले आते जरा लॉ एंड ऑर्डर पुलिस को भी, तो आपका आंसर और अच्छा हो जाता। ज्योग्राफिकली लोकेशन मार्क की जाए, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। आप उसका जियो टैगिंग कर दो, उससे पता लग जाएगा। सैटेलाइट से आप देखो, आपके पास सैटेलाइट है, आप सैटेलाइट से देखो, हर महीने का देखो आप। पुलिस स्टेशन को 2 मिनट में खबर मिल जाएगी, दोनों फोटो में फर्क आते ही। और उसके बाद वहां पे पैरा लगवा दो, लेकिन पैरा लगवाने के बाद भी गोली मार दी जाती है। प्रॉब्लम ये है। तो ये जो गोली मारने वाला जो चक्कर है और जो बाकी प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए? चलिए आगे। भारत में शहरी क्षेत्रों में अनियंत्रित और असंतुलित विकास की चुनौती शहर नियोजन और क्षमता में सुधारों को आवश्यक बनाती है। तो समावेशी और सतत विकास, शहरी विकास। आप इसके अंदर जो है, आप में से अभी तक जो भी आंसर हमने पढ़े, इसमें अभी तक आप प्रधानमंत्री जन आवास योजना को भी ले आते कि हैबिटेट तो दे ही रहा है। शहरी विकास तब बनेगा जब आप एग्रीकल्चर को लॉजिस्टिक्स देंगे, जब आप एग्रीकल्चर को एग्री इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म देंगे, तो शहरों का विकास अपने आप होगा। गांव का करेंगे तो शहर का हो जाएगा, पर ऐसा आप सोच ही नहीं पा रहे हो। आप जो है कंटेंट डेवलपर की तरह कोचिंग के आंसर से थोड़ा आगे भागने की कोशिश कर रहे हो। शहरीकरण के कारण संभावनाएं अभी, अनियोजन विकास, परिवेश में शहरी संस्कृति, संपत्ति का असंतुलन, शहरी क्षेत्रों में सुविधाओं के प्रति आकर्षण, बात तो सही है। तेजी से बढ़ती आबादी, पर्यावरण हनन, अकेलेपन की समस्याएं के कारण बढ़ते अपराध, शहरों में स्लम बस्तियां, यातायात की समस्याएं। बात आपने ठीक कहा। गांव से प्रस्थान के कारण खाद्य संसाधनों की कमी, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ब्रॉड पिक्चर, बड़ी पिक्चर लेके आइए। नीति आयोग की लेके आइए, फाइनेंस कमीशन की लेके आइए। आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां जो करना चाहती हैं, वो कौन लिखेगा सब? वो कहाँ गया? जो इतने समय से आपने जो न्यूज़पेपर के अंदर इतने इंपॉर्टेंट जो इंटरेक्शंस और जो डेवलपमेंट को आपने बात की, वो सब कहाँ गए? चाहे फिर आप शहर के डेवलपमेंट के लिए हर दूसरे दिन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है जो कि इनोवेटिव स्कोप की बात करता है। आपने सस्टेनेबल बिल्डिंग्स की बात नहीं की, आपने ग्रीन बिल्डिंग्स की बात नहीं की, आपने वाटर हार्वेस्टिंग का जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, सोलर सिस्टम की बात नहीं की। तो आप कुछ भी लेके आइए, लेकिन चीजों को ठीक से लेके आने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे। द रोल ऑफ क्रायोस्फीयर इज वेरी क्रूशियल। चलिए, वेरी गुड। इन्फ्लुएंसिंग वर्ल्ड्स क्लाइमेट, सोर्स ऑफ वाटर फॉर इकोसिस्टम, सिग्निफिकेंट फॉर लार्ज एंड बायोडाइवर्सिटी। चलिए आगे चलिए। लिंकेज विद लैंडस्केप, बहुत अच्छे पॉइंट्स है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा, अलग तरीके से लिखा। मेल्टिंग ऑफ आइस शीट्स, रुकिए एक सेकंड। एग्जांपल ऑफ स्टडी ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स, वेरी गुड। मेल्टिंग रिजल्ट्स इनटू राइजिंग ऑफ सी लेवल। तो कनेक्टिविटी ज्यादा है, लेकिन पहले वाले आंसर्स के अंदर एलिमेंट ज्यादा थे, इसकी कनेक्टिविटी ज्यादा है। कोस्टल इकोसिस्टम, फॉर एग्जांपल हैबिटेट, मैंग्रोव, कोरल। फिर उसके बाद आपने वाइल्ड लाइफ वर्सेज हीट वेव्स और वाइल्ड लाइफ एंड हीट वेव्स की बात की। उसके बाद इमरजेंसी लाइक फ्लडिंग, हरिकेन। चलिए, क्लाइमेट चेंज। चलिए आगे। एग्रीकल्चर लॉस, प्रोडक्टिविटी, अनप्रडिक्टेबिलिटी, सब आपने बताया।
ह्यूमन हेल्थ ऑल्सो सफर, देयरफॉर नीड एंड मेजर क्या चाहिए, स्ट्रेंथनिंग द मिशन लाइक नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी लेके आए, पहले भी आया था, आईसीसी रिपोर्ट आया, COP28 आया, और उसके बाद क्रिटिसाइज क्या, यूटिलाइजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, आई थिंक दिस इज अ डिफरेंट पॉइंट जो अभी तक नहीं था, वेदर, आइसबर्ग, पोल्यूशन, फोकसिंग मोर ऑन एक्टिविटीज टू इंक्रीज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन लाइक मिशन फॉर्मेशन टू रिवाइव कोस्टल इकोसिस्टम, वेटलैंड, मैंग्रोव, आई थिंक उसी डायरेक्शन में आगे आ रहा है, लेकिन वो कटिंग एज एलिमेंट अभी भी मिसिंग है। फ्रीक्वेंट इंस्टेंस ऑफ अर्बन फ्लडिंग पोज ए सीवियर रिस्क टू द अर्बन इकोसिस्टम, अर्बन फ्लडिंग पे इन्होंने फोकस किया, अर्बन इकोसिस्टम को छोटा बनाया, इज नॉट एबल टू एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर। ना सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब करने की है, वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना था, उस वाटर को जो उसका मैनेजमेंट होना चाहिए, वाटर का ही मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए, पूरे वो एक्वेटिक सिस्टम एक तरीके से आप लगा लो, या पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम, एक छोटा वर्ड अगर मैं बोलूं उसकी बात है। vulnerability, heavy rainfall, cyclone, insufficient drainage system, incapacity of rivers। आप ये भी लिख सकते हैं कि जो नाले हैं उनको प्राकृतिक नालों को छोड़ दिया जाए, साइकिल ट्रैक बनाए जाएं, और साथ में जो है पानी की निकासी के लिए जो नेचुरल तरीके हैं उन पर लोकल लोगों को तैयार किया जाए, तब जाके कुछ होगा। ऐसा आपको प्रैक्टिकल बोलना पड़ेगा, डीएम हर महीने दौरा करे एक दिन का, तब बात बनेगी। अर्बन फ्लडिंग, रोड ब्लॉकेज, अर्बन फ्लडिंग, तो रिजल्ट अब इन्होंने जो है पूरा ड्रैकोनियन पिक्चर तो बना दी, लेकिन उसके रिजल्ट, उनके जो पॉजिटिव आंसर है उसमें ये होना चाहिए, आपने नेगेटिव में तो पूरा बना दिया रिजल्ट, सारे रिजल्ट जो है नेगेटिव ही है। अब देखते हैं जरा पॉजिटिव में क्या है, क्योंकि नेगेटिव में एग्जामिनर को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि इन सब नेगेटिव का पॉजिटिव क्या है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पैक्ट इज मोर देन एक्सपेक्टेड, अब आंसर तो आया नहीं उसमें। मिनिमाइज इफेक्ट्स ऑफ अर्बन फ्लडिंग विद अडॉप्शन ऑफ रिसर्च टेक्नोलॉजी, यानी प्रॉब्लम इतनी सारी, आंसर में हमने रिसर्च बोल दिया। फ्लडिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, अरे हमारे पास सारे सिस्टम है भाई, सिस्टम से क्या होगा, सिस्टम अप्लाई होना चाहिए ना। कोसी नदी है, वो तो अर्बन एरिया को भी नहीं डुबाती, पूरा बिहार डूब जाता है, पूरा आसाम डूबता है, यूपी में, ईस्टर्न यूपी में बाढ़ आती है, जम्मू में श्रीनगर डूब गया था, बेंगलुरु डूबा पड़ा था, चेन्नई डूबा, दिल्ली में यमुना का लेवल पूरा होने के बाद फ्लडिंग आ जाती है, इस बार आपने दिल्ली में भी देखा था क्या हाल हुआ था, तो आपको प्रैक्टिकल आंसर लेके आना है। स्पॉन सिटी का कॉन्सेप्ट ये भी लेके आए, कितने आप लोग सब कितने इंटेलिजेंट हैं कि सब लोग कॉन्सेप्ट तो वही लेके आते हैं, लेकिन कुछ अलग लेके आने में क्षमता नहीं दिखा पा रहे हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मस्ट बी देयर, इलीगल एंड अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, पॉपुलेशन नीड टू बी बैलेंस, लिंकिंग रूरल एरिया विद अर्बन एरिया। कोशिश अच्छी है, लेकिन एवरेज आंसर ही हम कहेंगे। चलिए आगे। तो वी विल बी टेकिंग अप the remaining part in our part 2 of the same interaction. Let's move over there and continue this pleasant exercise with cheerfulness. Thank you very much.